اس کہانی کے لیکھک ہیں زرین قمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے چندر گھانٹ۔ صبح ہونے میں ابھی کئی گھنٹے باقی تھے۔ مہانور پچھلے کئی راتوں کی طرح ساحل سمندر پر موجود تھی۔ آج 14ویں رات ہونے والی تھی۔ 13ویں کا چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر جلوہ دکھا رہا تھا۔ اس کی دل آویز کرنیں سمندر کی رقص کرتی لہروں پر جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں، اور ان کی چمک سے بننے والا روشن حصہ سمندر میں چاند تک پہنچنے کا راستہ بنا رہا تھا۔ ایسا خوبصورت سما تھا جس سے آنکھیں ہٹانا ناممکن تھا۔ مہانور جو 2-3 راتوں سے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، وہ اب بھی رات کے اس پچھلے پہر میں یہاں موجود تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ اس نے سفید رنگ کی چمکتی میکسی پہنی ہوئی تھی جو ہوا سے لہلہا رہی تھی۔ اس کے سیاہ گھنگریالے بالوں میں ستاروں سے چمک لیا کلپ لگا تھا۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دودھیا بدن چاند کی روشنی میں سنگے مرمر کی طرح چمک رہا تھا۔ بڑی بڑی کشادہ آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے، اور وہ فضا میں ہاتھ لہراتی، جھومتی، گنگناتی ساحل کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے رقص کر رہی ہو۔ فضا میں موجود قہر بھی جیسے اس کے ساتھ ساتھ رقصا تھی۔ وہ کچھ دور چلتی، پھر جھک کر نیچے کچھ تلاش کرنے والے انداز میں دیکھنے لگتی، اور پھر آگے بڑھ جاتی۔ 14ویں کے چاند کی روشنی کی وہ ہمیشہ سے دیوانی تھی۔ اب بھی چاند کی پرکشش کرنے سمندر کی موجوں کی طرح اسے بھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور اس پر بے خودی طاری کر رہی تھی۔ اچانک رقص کرتے ٹھنڈے پیروں کے نیچے ٹھنڈی بھربری ریت نے اسے تھام لیا۔ وہ نیچے جھکی اور پھر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر روشنی کا عکس نمایاں ہوا، پھر مخروطی انگلیاں ریت میں کچھ ٹٹولنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ خوابناک لہجے میں بڑبڑانے لگی، اوہ مل گیا، مجھے چندر گھانٹ مل گیا۔ بے پایا خوشی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ایک اجنبی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے جو اجنبی کھڑا تھا بلا شبہ وہ کسی امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے کافی مہنگا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا اور خوبصورتی و وجاہت کا بے مثال نمونہ تھا۔ مہانور نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس وقت اس کی وہاں موجودگی کی وضاحت مانگ رہی ہو۔ میں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے سوال دہرایا۔ چندر گھانٹ، مہانور نے دھیمے لہجے میں کہا اور مسکراتے ہوئے اپنی بند مٹھی کی طرف دیکھا۔ مون اسٹون؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، تم اسے حجر القمر، سنگ قمر، چاند پتھر یا مون اسٹون کچھ بھی کہہ لو، یا مون اسٹون کچھ بھی کہہ لو، میں تو اسے صرف چندر گھانٹ ہی کہتی ہوں۔ حیرت ہے؟ کیسی حیرت اسے چندر گھانٹ کہنے پر؟ مہانور نے بند مٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، رات کے اس پہر ایک تنہا لڑکی کے یہاں موجود ہونے پر اور پتھر ڈھونڈنے پر میرا خیال ہے اس وقت ساری لڑکیاں اپنے آرام دہ بستروں میں محو خواب ہوں گی۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، لیکن وہ میری طرح چاند کی دیوانی نہیں ہوگی۔ چاند کی دیوانی؟ ہاں، مجھے چاند بہت پسند ہے، خاص طور سے 14ویں کا چاند۔ مہانور نے پیار بھری نظروں سے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ نوجوان نے پوچھا۔ لگتا تھا کہ وہ بات کو تول دے رہا ہے اور محض مہانور سے ہم کلام رہنا چاہتا ہے۔ کیا سب آج ہی پوچھ لو گے؟ کیا مطلب؟ کیا ہم پھر بھی ملیں گے؟ میرا اندازہ کہتا ہے کہ ہاں۔ کیا میں آپ کو ایک کپ چائے کی دعوت دے سکتا ہوں؟ صرف 5 منٹ کی ملاقات میں چائے کی دعوت؟ ہاں، آپ کی شخصیت بہت دلچسپ لگتی ہے، کیوں نہ مون ریسٹورنٹ میں چائے پی لیں؟ نوجوان نے کچھ فاصلے پر بنے ریسٹورنٹ کی جانب اشارہ کیا، جس کی روشنیاں بتا رہی تھی کہ ورکنگ عملہ جاگ رہا ہے۔ رات کے اس پہر میں؟ رات کہاں، اب تو صبح کی پو پھوٹ رہی ہے۔ نوجوان نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، جہاں صبح کی سفیدی نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، مہانور نے کہا، اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ریسٹورنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ علاقے میں نئے ہیں؟ مہانور نے پوچھا۔ نہیں، میں یہیں کا رہائشی ہوں، اتفاق سے آپ سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ وہ باتیں کرتے کرتے ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے تھے اور سمندر کی جانب لگی میز پر جا بیٹھے تھے، جہاں سے ساحل کا منظر اور اس کے ساتھ ستاروں کے جھرمٹ میں چمکتا چاند نظر آ رہا تھا۔ مہانور کی نظریں چاند پر جمی تھی۔ آپ نے بتایا آپ چندر گھانٹ ڈھونڈ رہی تھی؟ ہاں، مہانور نے پھر اپنی مٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، مہانور نے کہا اور مٹھی کھول دی۔ اس کی ہتھیلی پر ایک تکونا ٹرانسپیرنٹ پتھر چمک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس میں سے نہ رہی روشنیاں
मुनक्कस हो रही हो। नौजवान हैरत से देखता रहा। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या यहाँ साहिल पर ऐसे चमकने वाले पत्थर मिलते हैं? इसने पूछा और महानूर इसे मशकूक नजरों से देखने लगी। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या यह मुमकिन नहीं कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बातें करें? अब हमारी मुलाकात को इतनी देर तो हो गई है कि हम एक दूसरे का नाम जान लें, नौजवान ने बेतकल्लुफी से कहा। महानूर को इसकी बात अच्छी लगी। वो खुद भी इसके बारे में जानना चाहती थी। पहली ही नजर में वो इसे अच्छा लगा था। आपका नाम? महानूर ने पूछा। मुझे हम्माद अहमद कहते हैं और मैं महानूर हूँ। घर में मुझे सब मून कहते हैं। तुम भी कह सकते हो, महानूर ने हंसते हुए कहा। जरूर मून, हम्माद ने जवाब दिया। वो सोच रहा था कि इसकी एक बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। वो इस लड़की से मुतारिफ हो गया है जिसका पहली नजर में वो दीवाना हो गया। हाँ तो मून बताओ, क्या ये पत्थर इस साहिल पर मिलते हैं? हम्माद ने फिर पूछा। क्यों, क्या तुम भी इन्हें हासिल करना चाहते हो? महानूर ने फिर शकी नजरों से इसे देखा। हाँ, खासी हद तक। इन्हें ज्वेलर्स जेवरात में इस्तेमाल करते हैं जवाहिर की जगह। महानूर ने प्यार भरी नजरों से हथेली पर रखे चमकदार चंदर घाण को देखते हुए कहा। कितना कीमती होगा? मेरा मतलब है दूसरे जवाहरात के मुकाबले में। वैसे तो दूसरे जवाहरात के मुकाबले में इसकी कीमत कम है, लेकिन यह जिनके नसीब का पत्थर है इनके लिए बहुत कीमती है, जैसे मैं, महानूर ने कहा। तुम्हारा ताल्लुक इसके साथ क्या है? हम्माद ने पूछा। अब वो दोनों आप जनाब की कैद से आजाद होकर करीबी दोस्तों की तरह तू और तुम के कलमात तक आ गए थे। मैं जिन तारीखों में पैदा हुई इनके हिसाब से मेरा बुर्ज कैंसर है जो चांद के ताबे आता है, और मुझे चांद बहुत पसंद है। तुम हो भी तो चांद की तरह, हम्माद ने दिल की बात कह दी। इसी वक्त वेटर इनके करीब आ खड़ा हुआ। हम सिर्फ एक एक कप चाय लेंगे, हम्माद ने कहा और वो वापस चला गया। हाँ तो मैं कह रहा था कि तुम चांद की तरह खूबसूरत हो। महानूर इसकी बात पर मुस्कुरा दी। लेकिन मैंने सुना है कि जो लोग चांद के जेरे असर होते हैं वो थोड़े दीवाने, आम लोगों से जरा हटके होते हैं, और खास तौर पर चांद की 14वीं रात में तो इनकी दीवानगी उरूज पर होती है। सब फजूल बातें हैं, सब ने मन गढ़ंत किस्से बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। महानूर की आंखों में गुस्से की झलक नजर आ रही थी। मुमकिन है ऐसा ही हो। मैंने तो यूं ही पूछ लिया क्योंकि तुमने बताया कि तुम बुर्ज कैंसर से ताल्लुक रखती हो, चुनाचे अपनी आदात और कैफियत के बारे में खूब जानती होगी। मैंने सोचा तुमसे तस्दीक हो जाएगी। नहीं हम्माद, हम तो बहुत चाहने वाले लोग होते हैं। मैंने जैसे तुम्हें साहिल पर देखा तो मैं देखता ही रह गया, तो फिर तुम्हारे चांद जैसे चेहरे की कशिश मुझे तुम्हारी तरफ खींचती ही ले गई। हम्माद ने वालहाना अंदाज में इसे देखते हुए कहा। वो जल्द अज जल्द अपने दिल की बात इसे बता देना चाहता था। इससे सब्र नहीं हो रहा था कि वो इसे बता दे कि अब इसके बगैर वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो बिल्कुल इसके दिल में बसने वाली शहजादी जैसी थी। जिंदगी का इतना अरसा गुजार लेने के बावजूद अब तक किसी लड़की ने इसे इतना मुतासिर नहीं किया था। वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि वो कौन है, बस इसकी खूबसूरती ही इसके लिए काफी थी। तुम कहाँ रहते हो? महानूर ने पूछा। तभी वेटर चाय लेकर आ गया। इसने मेज पर चाय रखी। सर कुछ नाश्ते में लेना पसंद करेंगे? इसने पूछा तो हम्माद ने सवालिया नजरों से महानूर की तरफ देखा। नहीं, अभी बहुत जल्दी है, मैं थोड़ी देर से नाश्ता करती हूँ, महानूर ने जवाब दिया और हम्माद ने वेटर को जाने का इशारा किया। हाँ तो तुमसे तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर एक अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? महानूर ने कहा तो हम्माद हैरत से इसे देखने लगा। क्या? मैंने क्या झूठ बोला? मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से नहीं, रिहाइश के बारे में नहीं, महानूर ने इसकी बात काटते हुए कहा। तुम जो कह रहे हो कि तुमने आज मुझे जैसे ही देखा मेरी तरफ खींचे चले आए। हाँ यह भी सच है, हम्माद ने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। नहीं, यह झूठ है। तुम कैसे कह सकती हो? तुम पिछले 3 दिन से मुझे देख रहे हो, महानूर ने पूरी यकीन लहजे में कहा। तो हम्माद सोचने लगा कि वो कह तो दुरुस्त रही है, लेकिन इसने तो अपनी मौजूदगी जाहिर ही नहीं की थी। वो पिछले 3 दिन से अपनी कार बहुत दूर रोककर वहीं से इसे देखता था, लेकिन वो हैरान था कि महानूर को यह कैसे पता चला। हाँ यह सच है, आज भी तुम तकरीबन 1 घंटे से। हाँ यह भी सच है, हम्माद ने हार मानते हुए कहा। दरअसल पहले दिन जब मैं यहाँ आया था तो लोगों से यह खबर सुनकर आया था कि एक चांद जैसी हसीन लड़की अक्सर पूरे चांद की तारीखों में यहाँ नजर आती है। वो बहुत हसीन है, इस पर से नजर हटना भूल जाती है।
और मुझे भी ऐसी ही जीवन साथी की जरूरत थी। जीवन साथी? तुमने ये कैसे समझ लिया कि वो लड़की मैं ही हूं? महानूर ने हंसते हुए कहा। इसका जवाब तुम्हारी यह मशहूर कर देने वाली खूबसूरती है और वो मासूमाना अंदाज है जो मैंने अभी साहिल समंदर पर देखा। तुम बिल्कुल किसी बच्चे की तरह खुशी में रक्स कर रही थी। मेरे घर वाले मुझे खूबसूरत कम और दीवानी ज्यादा कहते हैं। मुझे चंद्रघाट जमा करने का शौक है और इन्हें मैं इस्तेमाल नहीं करती बल्कि एक जगह छुपा कर रखती हूँ। तुम इन्हें छुपाने के लिए क्यों ढूंढती हो? हम्माद ने हैरत से कहा। हाँ, बस ये मेरा शौक है। महानूर ने हाथ में पकड़े हुए चंद्रघाट को देखते हुए कहा। ये गोल तिकोने चंद्रघाट, चमकीले चिकने चंद्रघाट दीवाना करते हैं मुझको, नजदीक बुलाते हैं मुझको। फिर चांद की रोशन करनों में मैं इनको ढूंढती रहती हूँ, नजरों से चूमती रहती हूँ। मुझे लोग दीवानी कहते हैं, चंदा की रानी कहते हैं। ये गोल तिकोने चंद्रघाट, चमकीले चिकने चंद्रघाट। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रही थी और हम्माद इसे हैरत से देख रहा था। इसका अंदाज ऐसा ही था जैसे वो वाकई कोई दीवानी हो या इसमें कोई जहनी खलल हो। वो खूबसूरत तो है पर जरा खिसकी हुई है, पागल है पागल। इसे एक शख्स की कही हुई बात याद आ गई और इसने झरझरी सी ली। वो सोच रहा था कि पत्थर को यूं चाहना तो वाकई दीवानगी है, लेकिन इसका जहन ये मानने को तैयार ना था कि मून पागल हो सकती है। वो इतनी खूबसूरत लड़की को खोना नहीं चाहता था। इसने सोचा, अफवाहें तो अफवाह ही होती हैं। आज जब तुम आए तो मुझे पता चल गया। मैं साहिल पर चंद्रघाट ढूंढ रही थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म पर चारों सिमत से बहुत सी नजरें पड़ रही हो। ऐसा होता है ना, जब कोई आपकी सिमत छुप कर देख रहा हो और आपकी छठी हंस आपको बता दे कि कोई है जिसकी तवज्जो का मरकज आप बने हुए हैं। महानूर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा और इसे लगा जैसे वो इससे नजरें हटा ही नहीं सकता। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हम्माद ने मिकान की अंदाज में ताहीद की। मैं यहाँ से कुछ फासले पर रहती हूँ। कुछ अरसे पहले मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। वो बहुत अच्छी थी। वो कहती थी कि जब मैं पैदा हुई थी तो चौदहवीं का चांद आसमान पर चमक रहा था और जब उन्होंने मेरा खूबसूरत चेहरा देखा तो बेसाख्ता इनके मुंह से महानूर निकला। फिर उन्होंने यही मेरा नाम रख दिया। वो बहुत प्यार से मुझे महानूर पुकारती थी। महानूर ने कहा और अचानक इसकी आंखों में सितारों की तरह झलमलाते आंसू उतर आए। तुमने अब तक कितने चंद्रघाट जमा किए? हम्माद ने पूछा। बहुत से, लेकिन मुझे अपना मतलूबा चंद्रघाट अब तक ना मिला। क्या मतलब? इनकी किस्में होती हैं। मुझे अब तक जो मिले हैं वो अच्छे तो हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं जैसा मैं चाहती हूँ। शायद किसी रोज मेरी किस्मत जाग जाए और मेरा मतलूबा चंद्रघाट मुझे मिल जाए। इसकी क्या खासियत होगी? जब वो मेरे पास होगा तो मुझे हर चीज पर इख्तियार होगा, महानूर ने वालहाना अंदाज में कहा और हम्माद एक बार फिर इसे गैर यकीनी अंदाज से देखने लगा। क्या वो बहुत कीमती और महंगा होगा? नहीं, मून स्टोन बहुत महंगे तो नहीं होते, लेकिन वो चौके मुझे पसंद है, चुनाचे मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम इन्हें कहाँ रखती हो? मैंने इनका एक स्पेशल सीक्रेट गार्डन बनाया है। महानूर की आंखों में चमक आ गई थी और हम्माद की नजरें इसके जिस्म का तवाफ कर रही थी। इसमें बला की कशिश थी। हम्माद किसी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहता था। वो इसे छूकर महसूस करना चाहता था, इसे अपनी मलका बनाना चाहता था। सीक्रेट गार्डन? मून गार्डन? हम्माद ने पूछा। हाँ, तुम इसे मून गार्डन कह सकते हो, महानूर ने कहा। तो हम्माद को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। यह तो बिल्कुल दीवानों वाली बात थी। भला जमीन पर मून गार्डन कैसे हो सकता है? इसने सोचा, लेकिन अपनी सोच को महानूर पर जाहिर नहीं किया, क्योंकि इसे पाने के लिए यह जरूरी था कि वो खुद को भी इस जैसा ही साबित करे और इसकी बातों से इनकार करके इसे नाराज ना करे। क्या तुम्हारे इस मून गार्डन में कुछ खास कुदरती ताकतें हैं? हम्माद ने पूछा, हालांकि इसे अपने इस अहमकाना सवाल पर खुद भी हंसी आ रही थी। नहीं, कोई कुदरती खासियत तो नहीं, लेकिन आइंदा के लिए हमें वहां से कुछ निशानियां मिल सकती हैं, महानूर ने बड़े यकीन से कहा। यानी मुस्तकबिल करीब या बाइद में इन निशानियों से हमारी रहनुमाई हो सकती है? हम्माद ने भी इसके अंदाज में कहा। शायद, तुम कह सकते हो, महानूर ने गैर यकीनी अंदाज में कहा। तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हारे मून गार्डन में कुछ निशानियां हैं। हाँ, क्या तुम मेरा वो राज जानना चाहते हो, इसे देखना चाहते हो? महानूर ने पूछा। वो अभी नामुकम्मल है, अभी वहां की निशानियां भी पूरी नहीं है। अभी मुझे वहां बहुत कुछ दान करना है। क्या तुम आज रात इसे देखना पसंद करोगे? शायद ये रात तुम्हारी जिंदगी की
यादगार तरीन रात बन जाए। महानूर ने कहा। वो सोच रही थी कि ये काम इसके लिए बहुत आसान होगा। हम्माद इसे पसंद करता है, वो इसकी दावत पर इसके सीक्रेट मून गार्डन में जरूर जाएगा। हाँ क्यों नहीं, जरूर। वो कहाँ है? मैं जरूर देखना चाहूंगा। हम्माद ने इसकी तवक्को के मुताबिक जवाब दिया। इसके लिए तुम्हें आज रात ठीक 11 बजे दोबारा यहाँ आना होगा, फिर मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। क्या ख्याल है, 11 बजे ज्यादा देर तो नहीं होगी? महानूर ने पूछा। नहीं ठीक है, मैं आ जाऊंगा, हम्माद ने वादा किया। वो सोच रहा था कि रात के 11 बजे एक खूबसूरत लड़की से इसकी ख्वाहिश पर मिलने आना इसके लिए खुशबख्ती होगी। वो अपने दिल की मुरादें पूरी करेगा। वो बहुत खुश था। लेकिन महानूर, यह रेस्टोरेंट तो 10 बजे बंद हो जाता है, फिर सुबह खुलता है। हम्माद ने कहा। तो क्या हुआ, पहले भी तुम रेस्टोरेंट के बंद होने के बावजूद 3 दिन से आ रहे हो? महानूर के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। हाँ ठीक है, मैं ठीक 11 बजे यहाँ आ जाऊंगा और साहिल पर मौजूद पार्किंग में कार खड़ी कर दूंगा। इतनी रात को यहाँ शायद ही कोई पुलिस वाला या सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हो। हाँ फिर तुम आओगे ना? महानूर ने दोबारा पूछा। हाँ जरूर पुरस्कार चांद की मलका, हम्माद ने हंसते हुए कहा। वो सोच रहा था कि यह खूबसूरत लड़की सिर्फ इसके लिए ही बनी है, इसके लिए ही दुनिया में आई है और कुदरत ने इत्तेफाक से आज इन्हें मिलवा दिया है। वो किसी कीमत पर यह मौका खोना नहीं चाहता था। इसी वक्त वेटर बिल लेकर आ गया और अपनी खुशी में हम्माद ने चाय की कीमत से ज्यादा टिप भी इसे दे दी थी और महानूर के साथ रेस्टोरेंट से निकल गया था। रेस्टोरेंट से बाहर दोनों के रास्ते मुख्तलिफ सिमतों में चले गए थे। इस रोज जब हम्माद ऑफिस पहुंचा तो बहुत खुश था। वो एक मकामी फर्म में IT इंजीनियर था और इसका शुमार ऑफिस के बेहतरीन मेहनती मुलाजमीन में होता था। इसकी जिंदगी का ख्वाब अच्छी मुलाजमत, अच्छा घर, अच्छी कार और अच्छा जीवन साथी था और वो तमाम चीजें हासिल कर चुका था सिवाय आखिरी के। अब जीवन साथी का ख्वाब भी पूरा होने वाला था। वो अपनी खुशी अपने देरीना दोस्त से ना छुपा सका। ओ अरसलान, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसने अपनी सीट पर बैठे हुए अपने दोस्त को मुखातिब किया। खैरियत भाई, सुबह क्या खुशी मिल गई? अरसलान ने पूछा। तुम पूछो, तुम्हें तो पता है मैं अपनी जिंदगी के कई ख्वाब पूरे कर चुका हूँ। हाँ, और एक ही ख्वाब बाकी रह गया है, अरसलान ने कुछ सोचते हुए कहा। भाभी का ख्वाब? हाँ तुम ठीक समझे। अच्छा, कब, कैसे, किसने पसंद किया? क्या तुम्हारी मर्जी की है? अरसलान ने एक साथ कई सवाल कर दिए। भाई मैंने ही पसंद किया है तो मेरी ही मर्जी की होगी, हम्माद ने हंसते हुए कहा। तुमने? लेकिन तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया, बड़े छुपे रस्म हो, अरसलान ने नाराज होने की अदाकारी करते हुए कहा। अरे भाई, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं, हम्माद ने वजाहत की। सिर्फ 3 दिन? और तुमने इसे जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया? क्या तुम 3 दिन में इसके बारे में सब कुछ जान गए? भला कितनी बार मिले होगे इससे? अरसलान ने फिर कई सवाल कर दिए। एक बार और सिर्फ 1 घंटे के लिए, हम्माद ने बेखुदी में कहा और इसके तस्वर में अब भी महानूर रक्सा थी, हथेली पर चंद्रगांठ रखे जिससे इसका चेहरा मुनव्वर हो रहा था। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? अरसलान ने बेयकीनी से कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने इसे 3 दिन पहले साहिर पर मून रेस्टोरेंट के करीब देखा था। वो बहुत खूबसूरत है, इसका चेहरा चांद की तरह चमकता है। मैंने इसे देखा तो देखता ही रह गया। मैंने इसके हुस्न की तारीफें सुनी थी और इसे बढ़कर ही पाया। फिर मैं लगातार इसे देखने जाता रहा और कल रात में बेखुदी में इसकी तरफ खींचता चला गया। वो चंद्रगांठ ढूंढ रही थी। चंद्रगांठ? अरसलान ने हैरत से पूछा। हाँ, इसे अंग्रेजी में मून स्टोन कहते हैं। एक कीमती पत्थर होता है जिसे ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। जवाहिरात की तरह चमकता है लेकिन कीमत में इनसे कम होता है। वो चंद्रगांठ की दीवानी है, इन्हें इतना पसंद करती है कि इसने इनका एक सीक्रेट गार्डन बनाया हुआ है। वो मुझे आज रात वो दिखाएगी, हम्माद ने तफसील बताई। यार यकीन नहीं आ रहा, यूँ लगता है जैसे मैं कोई अलिफ लैला की कहानी सुन रहा हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जब मैं इससे मिल रहा था, हम्माद ने कहा। चलो, अगर तुम्हें तुम्हारी पसंद की जीवन साथी मिल गई तो पहली मुबारकबाद मेरी तरफ से कबूल करो, अरसलान ने खुश दिली से कहा। दुआ करो कि वो भी राजी हो जाए, मैं आज रात इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार करूंगा, हम्माद ने कहा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम्माद ने दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा था और शाम को ऑफिस से निकलते हुए रास्ते में एक बड़े शॉपिंग सेंटर से महानूर के लिए एक गिफ्ट खरीदने का इरादा किया था। इसने कई चीजें देखी लेकिन इसे कुछ पसंद ना आया। फिर इसकी नजरें एक बिल ओवर पर जम गई
जिसमें सर पर ओढ़ने के लिए भी टोपीनुमा हिस्सा बना हुआ था जो अंधेरे में चमकता था। इसका शेप बिल्कुल चांद जैसा था। इसने सोचा महानूर इसे पहनकर बहुत अच्छी लगेगी, इसका चेहरा चांद की तरह चमकेगा और यह इसे बहुत पसंद आएगा। इसकी नजरों में मेरी कदर बढ़ जाएगी और वो यकीनन खुश होकर मेरा शादी का पैगाम कबूल कर लेगी। हम्माद ने वो पुल ओवर खरीद लिया और घर के लिए रवाना हो गया। रात को महानूर साहिल की तरफ जाते हुए सोच रही थी कि हम्माद यकीनन अच्छी शख्सियत का मालिक होगा। वो पिछले शख्स की तरह झगड़ालू और हिज्जत करने वाला नहीं होगा। ऐसे लोग महानूर को पसंद नहीं थे जो इसकी बातों पर सवाल उठाते थे या इससे ख्वाह बहस करते थे। वो हम्माद के बारे में अच्छी राय रखती थी। वो बहुत ताउन करने वाला था, आराम से बातों में आ जाने वाला, जल्दी से कहना मान लेने वाला, प्यार में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने वाला, मुझे चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरे लिए कुर्बानी देने वाला। वो समझता है मैं इसके लिए कोई तरनवाला साबित होंगी, वो आसानी से मुझे जीत जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि आज की रात वो जो मून गार्डन देखेगा इसे कभी भी नहीं भुला सकेगा। इसे कभी भी मेरे मून गार्डन और इसमें मौजूद चंद्रगाड़ की ताकत पर शोभा नहीं होगा। कभी नहीं, कभी हरगिज भी नहीं। ठीक 10:68 पर हम्माद मून रेस्टोरेंट के करीब साहिल पर पहुंच गया था। इसने अपनी रेड स्पोर्ट कार साहिल पर पार्किंग में खड़ी की और पुलावर वाला शॉपिंग बैग लेकर कार से बाहर आ गया। इसने अपना बेहतरीन सूट पहना हुआ था। कार से बाहर आकर इसने मोबाइल की रोशनी में कार के आईने में अपना चेहरा देखा, टाई की नाट दुरुस्त की, फिर मोबाइल जेब में रखकर साहिल की तरफ बढ़ा। चंद कदम आगे बढ़ने पर इसे बंद मून रेस्टोरेंट की सीढ़ियों पर महानूर बैठी नजर आई। इसने हल्का नीला सूट पहना हुआ था। इसके गले में एक लॉकेट पड़ा था जिसमें चंद्रगांठ लटक रहा था और जो चांद की रोशनी में चमककर महानूर के चेहरे पर भी रोशनी फकेर रहा था। महानूर इसे देखकर बेताबी से खड़ी हो गई और हम्माद ने सोचा कि यकीनन वो इसे पसंद करती थी, जभी तो इतनी बेताबी से इसका इंतजार कर रही है। हम्माद इसके करीब पहुंचकर मुस्कुरा दिया और महानूर दौड़कर इसकी बाहों में आ गई। हम्माद इस बेतकल्लुफी पर हैरान था। इसे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। बगैर मांगे ही कुदरत को तोहफा इसकी झोली में आ गिरा था। आधी रात के वक्त साहिल पर दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था सिवाय हम्माद, महानूर और चंद्रगाड़ की रोशनी के। इसने सोचा यह रात मेरी जिंदगी की यादगार रात होगी। मैं इसे एक नई दुनिया में ले जाऊंगा, इश्क की दुनिया, प्यार और मोहब्बत की दुनिया, एक दूसरे को समझने, चाहने और परखने की दुनिया में। खुशामदीद शहजादे। महानूर ने इसके सीने से लगे लगे सरगोशी की और हम्माद के जिस्म में जैसे सनसनी सी दौड़ गई। तो फिर हम अपने मून गार्डन की तरफ चलें? महानूर ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। यकीनन, हम्माद ने प्यार भरे लहजे में कहा। वो सोच रहा था कि महानूर भी इसी की तरह बेताब है और तन्हाई में इसके साथ कुछ प्यार भरे लम्हात गुजारना चाहती है जो यादगार रहे। तुम रहनुमाई करो चांद देवी, हम्माद ने कहा और इसके इस खिताब पर महानूर के चेहरे पर खुशी के तासरात नजर आने लगे। इसे चांद देवी का खिताब पसंद आया था। हम्माद, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपना सेल फोन अपनी कार में छोड़ दो, महानूर ने फरमाइश की। तो हम्माद ने इसकी तरफ हैरत से देखा। इसने सोचा कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर इस ख्याल को जहन से झटक दिया। हाँ, क्यों नहीं, ये मोबाइल ख्वाह मख्वाह हमें डिस्टर्ब करेगा, हम्माद ने कहा और जेब से मोबाइल निकालकर कार की पिछली सीट पर डाल दिया। भला इस जादुई रात में हम किसी भी चीज को अपने प्यार के दरमियान क्यों आने दें? महानूर ने अपनाहियत से इसका हाथ थामा। जादुई रात? ओ हाँ, आज रात हमारे लिए जादुई रात ही तो है, हम्माद ने कहा। हाँ हम्माद, एक कीमती रात, चंद्रगाड़ की तरह कीमती, महानूर बड़बड़ाई। फिर वो दोनों हाथों में हाथ डाले साहिल की तरफ बढ़ने लगे। फिजा में सिवाय समंदर की मौजों की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। तकरीबन 500 फीट तक जाने के बाद वो एक ऐसी चट्टानी रास्ते पर आ गए थे जो सीधा समंदर में दूर तक चला गया था। ये क्या, ये कैसी जगह है? ओह, मैं समझ गया, तुम लोगों की नजरों से दूर रहना चाहती हो। भला इसकी क्या जरूरत है? हम्माद ने एतराज किया। तुम्हें याद है ना, ये सीक्रेट गार्डन है, तुम परेशान मत हो। मैं इस तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें दिखाना नहीं चाहती ताकि कोई मेरी गैर मौजूदगी में कभी वहां ना जा सके। बस थोड़ी देर की बात है, परेशान मत हो। हम समंदर में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा आगे, तुम्हारे पाँव रेत पर ही रहेंगे। मैं वादा करती हूँ तुम हर खतरे से बाहर होगे। महानूर ने मुस्कुराते हुए इसके बालों में उंगलियां फेरी
وہ اس ادا پر قربان ہو گیا۔ اوہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتی ہو، وہ تمہارا سیکرٹ مون گارڈن ہے۔ تم میری آنکھوں پر یہ کالی پٹی باندھ دو، اس سے یوں لگے گا کہ جیسے ہم آنکھ مچولی کھیلنے والے ہیں۔ ہاں یوں ہی سمجھ لو، مہانور نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی۔ اب حماد کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک جھاڑی دار راستے میں داخل ہو گئے جس کی نوکدار پتیاں اب حماد کو چبھ رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حماد نے پوچھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی چال نہ ہو، کہیں اسے لوٹ کر قتل نہ کر دیا جائے، لیکن اسے مہانور سے یہ توقع نہیں تھی۔ پھر وہ چلتے چلتے رک گئے۔ حماد اب تم سیاہ پٹی کھول سکتے ہو، مہانور نے پیار سے کہا اور حماد کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے، حماد نے آنکھوں سے پٹی کھولتے ہوئے کہا۔ یہ ہے میرا سیکرٹ مون گارڈن۔ مہانور نے ایک سمت اشارہ کیا اور حماد اس طرف مڑا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ جہاں موجود تھے وہاں دونوں طرف جھاڑیاں تھیں جن میں جگہ جگہ قیمتی چندر گھانٹ رکھے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے، جس سے راستہ بھی روشن ہو گیا تھا۔ اس راستے پر قدم بڑھاتا ہوا وہ مہانور کے ساتھ کھلے میدان میں آ گیا جہاں مون اسٹون سے ایک بیضوی دائری بنا ہوا تھا۔ وہ چاند کی روشنی میں پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے اور ان کے درمیان دودھیا پانی میں کوئی سفید سی چمکدار چیز موجود تھی جو ان سب سے زیادہ روشن و منور تھی۔ یہ ہے میرا سیکرٹ گارڈن جس کے لیے میں چندر گھاٹ جمع کرتی ہوں، مہانور نے کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی آسانی سے اسے وہاں لے آئی تھی۔ تو یہ ہے تمہارا مون گارڈن، اس کا کیا مقصد ہے؟ حماد نے پوچھا۔ ارے میں نے تمہیں بتایا تو تھا احمق کہ یہاں بہت سی نشانیاں ہیں، مہانور نے کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ حماد کا دماغ تو بس اس کے جسم اور خوبصورتی پر ٹکا ہوا ہے، اسے کچھ ہوش ہی نہیں، اور یہ ٹھیک بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد کسی خوبصورت عورت کے سامنے اپنا سب کچھ ہار جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ حماد بھی بھول گیا تھا۔ اس کے حسن کے آگے حماد کے لیے ہر چیز ماند ہو چکی تھی۔ اوہ ہاں ہاں، بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا اگر میں کوئی نشانی ڈھونڈنا چاہوں تو؟ حماد نے پوچھا۔ وہ مہانور کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا مجھے اس کے لیے کوئی فیس ادا کرنی ہوگی مہانور؟ اس نے پوچھا۔ فیس؟ ارے نہیں، یہ بالکل فری ہے۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ تمہیں باہر سے اس بیضوی دائرے کے اندر چھلانگ لگانا ہوگی، اس چمکدار پتھر کے پاس، جبکہ تمہارے ہاتھ تمہاری سائڈز میں ہوں گے اور تمہاری نظریں اوپر آسمان پر چمکتے ہوئے چوتھی کے چاند پر، مہانور نے کہا، اور اس کی آواز میں جذبات کی شدت کی وجہ سے ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ حماد نے سوچا، یہ تو بہت ہی آسان ہے، اتنی آسانی سے وہ مہانور کو خوش کر سکتا ہے، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ جیسے تیراکی کے لیے بڑا جم لگاتے ہیں، اس نے تصدیق کی۔ ہاں بالکل، بڑا جم بہت ضروری ہے اگر تم اصل نشانی تک پہنچنا چاہتے ہو تو، مہانور نے کہا، اور حماد نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ اس کام سے فارغ ہو کر مہانور کے ساتھ کچھ اچھے اور یادگار لمحات گزارے گا۔ کیا میں کامیابی سے یہ کر سکوں گا؟ اور کیا میری چاندے بھی اس سے خوش ہوگی؟ حماد نے پوچھا۔ اسے مہانور کی خوشی کا بہت خیال تھا۔ ہاں کیوں نہیں، مہانور نے کہا۔ ٹھیک ہے، حماد نے جواب دیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ سے پلاور نکالا جو وہ مہانور کے لیے لایا تھا، جس میں چمکنے والا مون ماسک لگا ہوا تھا، اور وہ اس نے مہانور کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے لیے میرے پیار کا پہلا تحفہ۔ واہ زبردست، مہانور خوشی سے چلائی۔ اسے پلاور کی چاند کی روشنی میں چمکتا ماسک بہت پسند آیا تھا۔ بہت خوبصورت۔ تمہیں پتا ہے حماد، اس تحفے کے لیے لیڈی لونا یعنی یونانی چاند کی دیوی بہت خوش ہوگی۔ وہ تم سے پہلے سے بھی زیادہ پیار کرے گی حماد، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گی۔ بس تم میرے ساتھ اس کھیل میں شریک رہو اور مستقبل کی نشانیاں ڈھونڈتے رہو، اسے خوش کرتے رہو، اور یاد رکھو ہمارے پیار کے، خوشی کے، دائمی محبت کے لمحات بس چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ کیا تمہیں یہ تحفہ پسند آیا مہانور؟ حماد نے پوچھا۔ اوہ میری خواہش تھی کہ میں اسے پہنے ہوئے تمہاری تصویر بنا سکتا، لیکن میرا موبائل تو کار میں ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، مجھے یہ تحفہ بہت پسند آیا، شکریہ حماد۔ کیا اب تم چاند دیوی کو خوش کرنا چاہو گے اور اس بیضوی دائرے میں چھلانگ لگاؤ گے؟ مہانور نے پوچھا تو حماد نے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھا۔ پل آور پہن کر اس کا ٹوپی والا حصہ مہانور نے سر پر اوڑھ لیا تھا اور اس میں لگا ماسک چہرے پر گلا لیا تھا جو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ چلو چھلانگ لگا دو اور دیکھو کہ آگے تمہاری زندگی میں تمہارے لیے کیا تحفہ ہے۔ میں تیار ہوں میری مون، لو میں چلا۔
حماد نے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا سا تحفہ دینے اور ایک بات مان لینے کے بعد مہانور اس کی ہوگی۔ اس خیال میں مست اس نے بیسوی دائرے کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ سیدھا دائرے میں موجود چمکدار چندر گھاٹ کے قریب پانی میں گرا تھا اور نیچے چلا گیا تھا جہاں اندھیرا تھا۔ وہ تقریباً 13 فٹ نیچے گیا تھا۔ اس کے پاؤں نیچے پانی میں ٹھنڈی بھری ریت سے ٹکرائے تھے اور پھر اس میں دس گئے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری دلدل کے کنویں میں پھنس گیا ہو۔ میرے پیارے، تمہیں میرے چندر گھاٹ مبارکباد دیتے ہیں۔ اس دنیا میں تمہاری آمد کا شکریہ۔ مہانور اوپر سے اسے پکار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موت کی سی تاریکی چھا گئی تھی۔ یہاں ہمیشہ ایک مزید شخص کی گنجائش رہتی ہے، وہ بڑبڑائی، اور ہمیں ہمیشہ ایک مزید کی ضرورت رہتی ہے۔ چاند جو اس زمین پر کرنیں بگیرتا ہے اور اپنی کرنوں سے سمندر میں جوار بھاڑا پیدا کرتا ہے، اسے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، مہانور کہہ رہی تھی۔ اور حماد سوچ رہا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی پاگل لڑکی کا شکار ہو گیا ہے جسے چاند کی بھین چڑھایا جا رہا ہے۔ وہ پانی سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اترنے والا آخری عکس مہانور کا وہ چہرہ تھا جو پل آور کے ہیڈ ماسک سے روشن نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ بھی وہاں سے ہٹ گئی تھی اور حماد کی آخری چیخ سننے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا سوائے اس چندر گھاٹ کے جس کے نیچے پانی کی تہہ میں وہ پڑا تھا۔ اگلے ماہ اسی رات ٹھیک 10 بجے مون ریسٹورنٹ کے ساحل پر مہانور نئے لباس میں ملبوس 14ویں رات کے چاند کی روشنی میں رقصہ حسن لٹاتی، نغمے گاتی، پھر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک ایک نوجوان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ ارسلان تھا، حماد کا دوست۔ وہ اپنے دوست کی خوبصورت جیون ساتھی کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ مہانور کے حسن سے مبہوت رہ گیا۔ یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے مہانور سے پوچھا۔ چندر گھاٹ، مہانور نے ایک ادائے دل بری سے کہا۔ چاند کی اس دیوی کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔